अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Okay, Assalamu alaikum, dear students. I hope you have been able to connect. We have already passed like 5 to 6 minutes, so I'll just start the lecture. I would like to ask if you have any questions from the previous discussions that we had, and please confirm in the chat box that you're able to hear my voice, that I'm audible to you. Okay, any questions from the previous discussions? And I hope you try to finish that chapter, that help sheet of reading skills. या आपने खुद करने की कोशिश की होगी और कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा. Okay, since you have no questions, we'll move forward to the next practice that we need to do so. I think we talked about SQ3R method, the reading process, and the strategies. And today we are going to talk about the reading basics, the chapter that I told you we need to finish. And in today's chapter, we're going to learn about basics of reading, something that you already know, some of you already know, and some of you will get to know. This is not something that is difficult. Now, if you see at this information box, you know this, like every day you read under and understand what you read. You read text messages from your friends, you read signs, get information online, read about people, and etc. The question is, when you read for yourself, do you read differently than when you read for a class? How? Is there a difference? If there is, what is the difference? Who would like to answer? You may think
Take a minute or two. The question is, when you read for yourself, do you read differently than when you read for a class? How? What are those differences? Can somebody tell? Nobody can tell? कुछ समझ नहीं आ रही? इस क्वेश्चन का बस आंसर देना है. When you read for yourself, do you read differently when you read for a class? Basically, it's true. When we read for ourselves, जब हम खुद के लिए पढ़ते हैं तो वो different है. हम low pace पे पढ़ते हैं, fast sorry सॉरी फास्ट पेस पे पढ़ते हैं. हम अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब आप लेक्चर के लिए पढ़ते हो, एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो डिफरेंटली पढ़ते हो. So how you understand what you read is equally important. Now we are going to learn about active reading and critical reading. Now we can preview the reading by uh, you know um, याद है वो एक प्रोसेस था रीडिंग का, उसमें प्रिव्यूइंग क्या है? Looking for the headings, underline words, important bold words in order to understand what the crux of the entire reading is. So if we preview this entire chapter, you can see that it is going to tell us about active and critical reading, then how to read actively is there, find main point, and supporting detail, find the support of the main point, how a paragraph is written, how to read actively, certain paragraphs are given, read critically, criterions for reading critically, or it goes on. तो ये जो सारा हमने प्रिव्यू किया है, this preview helps us understand what the entire chapter is about. So previewing the reading makes your reading effective, easy, and more comprehensible. यानी जैसे ही आप एक लोग पूरा चैप्टर देख लेते हैं, so it becomes more convenient and more easy for the audiences to अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन भी देते हैं तो उसमें आप एक एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, एक प्रीव्यू देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का, तो प्रीव्यूइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिटिकल, एक्टिव एंड अदर टाइप्स ऑफ रीडिंग एज वेल. So how to read actively? When you read actively, you definitely look at the main idea. You probably would put a question mark or a tick mark in front of it. You can use an exclamation mark. Active reading actually requires you to have a reaction to the text that you're reading. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन माइंड में नहीं आता, आप कुछ नोट नहीं करते, तो that is not active reading, that will be passive reading. Now we are going to try and learn about how to read a text, right? The most important questions that should be there in your mind when you start reading is, what is the main point of the author in the paragraph or in the text, and how does he support it? So the concept of main idea and supporting detail is going to be discussed, and we are also going to learn something about paragraph writing in this. So the main point is usually introduced in the initial stages of the reading.
Now we have a paragraph and we are supposed to identify the main point and write it in our own words. So I'm giving you 5 minutes. आप इसको पढ़ लें इस पैराग्राफ को. ठीक है, आप अपने एंड पे बेशक इसे ओपन कर लें. एक सेकंड. ठीक है, read this paragraph and tell me what do you think is the main idea. और आप अपने वर्ड्स में आपने मुझे बताना है. 5 मिनट्स है, उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस. ठीक है. Okay, who would like to share whatever they've understood? What is the main idea of the paragraph? मैम मैं बताऊं? जी जी. मैम इसका मेन आइडिया है कि अमेरिकन और चाइनीज जो है वो पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ डिफरेंट वे. Hmm. अमेरिकन यूजुअली फोकस ऑन वन मेन थिंग एट अ टाइम एंड चाइनीज पीपल यूजुअली लुक एट द होल सिचुएशन एंड बैकग्राउंड बिफोर डिसाइडिंग. So basically, the main idea is that American and Chinese styles of problem solving is different from each other. However, आगे जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सपोर्टिंग डिटेल में आ जाती है कि वो किस तरह से सपोर्ट डिफरेंट क्यों है. Very good. So I'm going to read this text for you so that everybody can follow. और हम इसमें ये भी देखेंगे कि ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है. पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है? पैराग्राफ में भी we have an opening sentence. अब देखिए the first line. Psychologists have for some time noted the difference in problem solving styles of Americans and Chinese, and new research underscores that difference. So the opening line is the parameters that is setting the whole idea that what is going to be discussed. Psychologists say that Americans are specific problem solvers, focusing on one problem at a time,
And in contrast, Chinese consider the broader context of a problem before acting. Now, in contrast is a transition marker, it's a transition phrase. So, in a paragraph, to be an effective paragraph, of course, you should have a tone that is being set, यानी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्लेम होना चाहिए, ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए, जिसमें द डायरेक्शन ऑफ योर पैराग्राफ शुड बी क्लैरिफाइड, यानी द थीम और द टॉपिक or the unity of your topic should be clarified. And we know for a fact that in the rest of the paragraph, we are going to talk about Americans and Chinese. Then psychologists are there as well. Psychologist says that now the comparison starts. It's a compare and contrast kind of a paragraph as well. And when the paragraph is working this way, we can clearly see that the first they talk about Americans, that they are specific problem solvers. On the contrary, in contrast, Chinese consider the broader context of a problem before acting. Now, this is an effective opening of a paragraph. Paragraph ऐसे नहीं लिखते बेटे जिसमें हम कहते हैं ना जैसे एजुकेशन पे हम लिखते होते थे स्कूल में, एजुकेशन इज द नेसेसिटी ऑफ ऑल टाइम, एजुकेशन इज नेसेसरी, everybody should get education. That is a very, very wrong way to write an effective paragraph or paragraph for that matter. Whenever you are starting a paragraph, it should have a clear statement, a clear topic sentence with the help of specific detailing that gives more detail about that claim that you have made. Researchers at the University of Michigan recently charted the eye movements of two groups of people when they were shown photographs. Americans focused on the foreground with only brief sweeps on the background. Chinese people focused on the background with many eye movements back and forth and limited stops at a particular object. It appears that eye movements parallel problem solving style. अब देखिए हमारा ओपनिंग क्या थी, हमारा जो ओपनिंग सेंटेंस था वो प्रॉब्लम स्टाइल्स के बारे में ही था, और हमारा कंक्लूजन जो है वो भी उसी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. सो इन एन इफेक्टिव पैराग्राफ योर इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड टू योर कंक्लूजन. अब स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, हम यूजुअली क्या करते हैं, एंड में लिख देते हैं गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट, हेंस प्रूफ दिस इज डन. नो नो नो, यू मस्ट रीस्टेट व्हाट यू हैव स्टेटेड इन द ओपनिंग ऑफ द पैराग्राफ. यानी देखिए पहले लाइन में हमने यही बात की कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो दोनों के परस्पेक्टिव है वो डिफरेंट है, और यहाँ पर हमारे पास उसके जस्टिफिकेशन भी है कि आई मूवमेंट पैरेलल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. अच्छा, सपोर्टिंग डिटेल हमारे पास कैसे है, ये हमारे पास क्लेम है कि अमेरिकन एंड चाइनीज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर in problem solving styles. Then the first supporting detail is that they focus on specific problems and Chinese they focus on broader context. अब इन दोनों बातों को यानी Americans are specific problem solvers, इसको further justify और explain करने के लिए उन्होंने जो आगे लिखा है, Americans focused on the foreground with brief sweeps on the background, यानी वो specific information देखते हैं. On the contrary, Chinese consider the broader context. So Chinese people focused on the background with many eye movement. तो ये प्रूफ हो जाता है. देखिए प्रूफ करने के लिए कि आई मूवमेंट्स आर पैरेलल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल्स, उन्होंने पहले एक क्लेम दिया पहली लाइन में, उसके बाद एक सपोर्टिंग डिटेल दी, और उस सपोर्टिंग डिटेल को फर्दर आर्ग्यूमेंटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के साथ, ऑफ कोर्स इट्स अ सर्वे जो है एक स्टैटिस्टिकल डेटा की तरह इधर यूज हो रहा है, तो उन्होंने इधर इनकॉर्पोरेट किया और मेन पॉइंट को ऐसे सॉल्व किया. आई होप यू आर गेटिंग इट दैट हाउ टू आइडेंटिफाई a main point and a supporting detail and how to write in an effective paragraph. Paragraph writing मैं आपको separately भी पढ़ाऊंगी, लेकिन साथ साथ मैं इसलिए भी बताती हूँ because in these books very interesting different types of paragraphs are already written. तो साथ पढ़ना ही है तो साथ में आपको बता देती होती हूँ. अच्छा, ये जो in contrast, therefore, firstly, secondly, thirdly, in conclusion, these are transition markers, transition phrases. They are very important for coherence and cohesion. अब देखिए इस पैराग्राफ में हमारे पास cohesion भी है और coherence भी है. Any idea what is cohesion and coherence? Hmm? Writing techniques हैं cohesion and coherence. कोई पता हो?
Well, coherence is based not only based on language, but मैं आपको इस तरह से समझाने आसान समझाने की कोशिश करूंगी. Coherence is when all the sentences they are logically fitting together, which means that the previous sentence has connection with the next one, and they are logically fitting together. अब देखिए यहाँ जो हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल है उसमें हमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की बात की है, लेकिन आगे वाले सपोर्टिंग डिटेल में और इवैल्यूएशन या एक्सप्लेनेशन में हम कुछ और ही लिखना शुरू कर दें तो वो कोहेरेंस को डिस्टॉर्ट कर देती है. कोहेजन ऑन द अदर हैंड इज द आइडिया दैट दे मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, तो कोहेजन एंड कोहेरेंस वर्क लाइक दैट. नाउ द सेकंड पैराग्राफ इज अगेन इन एन इंटरेस्टिंग वन. कौन बताना चाहेगा इसका मेन आइडिया क्या है? चलिए मैं आपके लिए पढ़ भी देती हूँ so that you can listen. Many people look at me blankly when I say I am a vegan. They think maybe it is a religion or some unusual ethnic background, but a vegan is a normal person, a vegetarian who eats only plants products. Vegans do not eat meat, fish, eggs, or milk products. That means I do not eat cheese, yogurt, or ice cream, among many other milk products. I do not eat anything that comes from a living creature, but that does not make me weird or even a little or even a difficult dinner guest. I eat all kinds of vegetables, fruits, and beans, and I am one of a growing member of people who believe that it is healthier and more humane to eat only plant products because my diet does have restrictions. I have learned a lot about nutrition and I eat no junk food. I am healthy and I am a vegan. So, what is the main idea of the entire paragraph? Nobody understands? किसी को समझ नहीं आ रही? मैम जी मैं जी बताऊं? जी बताओ. मैम vegans are normal people who हम्म. choose a healthy and compassionate plant based diet. सही है. यस दैट्स करेक्ट. अब देखिए कोई स्पेसिफिक लाइन अगर हमने इसमें ना ढूंढनी हो फॉर ए टू बी एबल टू बी कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस तो वो यही होगा कि vegans do not eat meat and milk products. That is the main point. अब देखिए पहली जो तीन चार लाइनें हैं वो सेम बात कर रही हैं, वो भी इस मेन आइडिया का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन जो vegan is a normal person, a vegetarian who only eat plant products and they do not eat fish and milk or meat of some sort. ये हमारा मेन आइडिया. अब देखिए मेन आइडिया हमेशा पहली लाइन हो जरूरी नहीं है, ये आपने याद रखना है. ठीक है. उसके अलावा अगर हम ट्रांजिशन मार्कर्स की बात करें तो वी डू हैव ट्रांजिशन मार्कर्स इन दी पैराग्राफ एज वेल. देखिए इसमें ट्रांजिशन सेंटेंस है बिकॉज माई डाइट डज हैव रिस्ट्रिक्शंस आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट न्यूट्रिशन. अब देखिए आई यूज हुआ है तो दिस इज अ पर्सनल opinion, a personal paragraph, an opinion paragraph, a descriptive paragraph. It is also analytic in nature, where the writer of this paragraph is clarifying that what does it mean to be a vegan and what kind of vegan he is, because he says that I'm not a difficult guest because I eat all kinds of vegetables. So he's providing justification of what he does and how he does it. Then we have another paragraph. The classroom is noisy with loud voices bouncing off the walls. No one pays attention to the teacher who moves around in the room, saying little. Students' desks are arranged in circles of four, but many students are not in their seats. They strain over sheets of paper at the center of each cluster of desks. They point and gesture. They argue. No, that is not right. Listen to me, says one student as she leans towards another. Is this the stereotypical chaos and
of an unruly, unengaged urban high school? No, it is indeed an urban high school classroom, and it is indeed, or it indeed seems chaotic, but this is Mr. Brown's algebra class, and Mr. Brown's students are working on solving a problem. An engaged classroom looks and sounds alive, like Mr. Brown's class. A classroom of success is active and not passive. Now, this is a little bit tricky. ये paragraph थोड़ा सा tricky है. So, what do you think is the main idea of this? इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? प्लीज 2 मिनट लें, दोबारा पढ़ लें, फिर बताइएगा. रिमेंबर कि टॉपिक सेंटेंस हमेशा शुरू में हो जरूरी नहीं है, इन द मिडल हो जरूरी नहीं है, वो एंड पे भी हो सकता है. तो व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ? एनीबडी जो मतलब गेस भी हो सकता है, बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगी. हम्म. मैम जी जी. ये है कि an engaged classroom may seem chaotic, but the activity shows students are actively ओके, learning. क्लोज इनफ, क्लोज इनफ. अब देखिए, मिस्टर ब्राउन तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल की तौर पे ऐड किया गया ना यहाँ पे. The main idea is a classroom of success is active and not passive. अभी मैंने आपको बताया एक्टिव वो होगी जो एंगेज्ड होगी. जैसे जब आप रिस्पॉन्स देते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो ये एक एक्टिव क्लास बन जाती है. लेकिन अगर हम बस मैं ही बोलती जाऊं और क्लास खत्म हो जाए तो वो पैसिव हो जाएगी. तो अब देखिए, अर्बन क्लासेस में ऐसा होता है. हमारी क्लासेस तो अभी भी थोड़ी सी आउटडेटेड है, सिटिंग अरेंजमेंट उस तरह की नहीं है. लेकिन जो engaged classes होती है, specifically in high schools, in those classes teachers they do not speak much, they only guide. यानी सेल्फ लर्निंग होती है कि स्टूडेंट्स आपस में बैठ के बात भी करते हैं, डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, मे बी मूव अराउंड भी कर रहे होते हैं. तो दैट इज द सक्सेसफुल क्लास, दैट इज द engaged class. So you're very much right that the main idea of the paragraph is that a successful class is an engaged classroom. It is an active classroom and not a passive one. तो इस तरह से भी आप पैराग्राफ्स को अरेंज कर सकते हैं. अब देखिए, इसमें कोई भी एक ऐसा सेंटेंस नहीं है जो रेलेवेंट नहीं है, सब रेलेवेंट है. पहले डिस्क्रिप्शन है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद टीचर क्या कर रही है उसकी भी एक डिस्क्रिप्शन है, और फिर एक एग्जाम्पल भी दी गई है मिस्टर ब्राउन की. फिर फोर्थ पैराग्राफ है, चलिए पढ़ ही लेते हैं, टाइम तो है. द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन आवर सोशल रिलेशंस इज एग्रेशन. In psychology, aggression has a more precise meaning than it does in everyday usage. The assertive, persistent salesperson is not aggressive, nor is the dentist who makes you wince in pain. But the person who passes along a vicious rumor about you, the person who verbally assaults you, and the attacker who mugs you are aggressive. In psychology, aggression is any physical or verbal behavior intended to hurt or destroy. Murders and assaults that occurred as hostile outbursts are aggression. So were the 110 million war-related deaths that took place during the last century. ठीक है. अब ये पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा गया है. अच्छा, आप बता सकते हैं इसका मेन आइडिया क्या है? टेक अ मोमेंट, बेशक दोबारा पढ़ लें. इसको ऐसे ओपन कर देती हूँ.
तो बताएं इसका मेन आइडिया क्या है। अच्छा, ये हमें पता है कि द पैराग्राफ इज अबाउट वन टॉपिक एंड दैट टॉपिक क्या है? हम्म? अच्छा, कौन से आइडिया के बारे में बात हो रही है? कौन सा वर्ड है जो उस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैम अग्रेसिव। यस, एग्रेशन। देखिए, पहली ही लाइन में clearly aggression को mention किया गया है that most destructive force in our social relation is aggression. However, the specificity that in psychology aggression क्या है वो clarify किया गया. So the main idea of the paragraph is that what aggression is and what common people think aggression is. So they are trying to disseminate. This is an informative paragraph where the author is trying to disseminate information about what actually is a psychological concept aggression कि उसमें everyday use से वो different है. So in psychology, look at the second sentence. In psychology, aggression has more precise meaning than it does in everyday usage. That is the main idea of the paragraph. ठीक है, तो इस तरह से आप इनको identify कर सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मेन पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक इफेक्टिव पैराग्राफ कैसे लिखते हैं और उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. अब जो अगले पैराग्राफ्स हैं दे आर मेनली मेंट फॉर प्रैक्टिसेस जहां पर आपने सपोर्टिंग डिटेल्स को ही आइडेंटिफाई करना है. ऑफ कोर्स उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आप मेन पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो व्हाट इज अ सपोर्ट और सपोर्ट सेंटेंस और पैराग्राफ्स? सपोर्टिंग वर्ड्स भी होते हैं, सपोर्टिंग phrases भी होते हैं, sentences भी होते हैं, paragraphs भी होते हैं और and it goes on. It's a long list, right? So support is the detail that shows, explains or proves the main idea. It actually seconds or provides um, uh, uh, um, background and weightage to the main idea. Takes different forms depending on what you're reading or writing. When you read assigned selections in college, you need to be aware of the author who's supporting or proving his or her main idea. In tests and assignments, you're often asked to respond to certain selections, and while you're doing so, you would explain why you agree or disagree by referring to the author's support. Okay, so this is the following excerpt is taken from a book about science by Bill Barrison. Double underline the main idea. Place a check mark in the margin next to sentence that support the मेन आइडिया. ठीक है, अब ये आपने करके दिखाना है. ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेक्स्ट मुश्किल हो सकता है. टेक्स्ट में आपको एक दफा पढ़कर बता भी देती हूँ, समझा देती हूँ, लेकिन इसका मेन आइडिया क्या है और इसमें ट्रांजिशन मार्कर्स कौन से यूज हो रहे हैं, सपोर्टिंग डिटेल क्या है, वो आपने मुझे करके बताना है. ठीक है, लेट्स रीड द टेक्स्ट. The scariest, most out of control bacterial disorder of the moment is a disease called necrotizing fasciitis, in which bacteria essentially eat the victim from the inside out, devouring internal tissues and leaving behind a pulpy, noxious residue. अच्छा, रेजिड्यू यानी जो रह जाता है. नेक्रोटाइजिंग फैसिशाइटिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ह्यूमन टिश्यूज को खा जाता है. डिवावर का मतलब होता है खा जाना, कंज्यूम कर लेना, खत्म कर देना. और पीछे क्या रह जाता है? पल्प और रेजिड्यू, यानी जो कुछ रह जाता है. जो पार्ट वो खा जाता है वो तो खा जाता है और जो रह जाता है उसे पल्प में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसके पास बेसिस नहीं रहती. Patients often come in with comparatively mild complaints, a skin rash, a fever typically, but then dramatically deteriorate. So the initial symptoms are simple rash and fever, but then डिटीरिएशन क्या होती है, यानी वो कोलैप्स कर जाते हैं. वो इतना रैपिड होता है, इतनी तेजी से वो इन्फेक्शन फैलता है कि वो dramatically deteriorate होते हैं. When they are opened up, it is often found that they are simply being consumed. Devour जो word है
वो कंजम्पशन से रिलेटेड है. दिस इज हाउ कोहेजन एंड कोहेरेंस इज मेंटेन्ड, कि सिमिलर किस्म के वर्ड्स को जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो लिखा जाए. द ओनली ट्रीटमेंट इज what is known as radical excisional surgery, cutting out every bit of infected area. 70% of victims die, many of the rest are left terribly disfigured. The source of the infection is mundane family of bacteria called Group A Streptococcus, which normally do no more than cause strep throat. हमें वो होता है ना इन्फेक्शन, राइट नाउ फॉर एग्जांपल मेरा गला खराब है, मुझे नज़ला जुकाम है, और इस वक्त मुझे ये जो कॉमन कोल्ड हम जिसको बोलते हैं, आई एम गोइंग थ्रू दैट, राइट. और नेक्रोटाइजिंग फैशिटाइसिस में क्या होता है कि यही जो बैक्टीरिया है वो इसकी बेसिक्स है. Very occasionally is a transition marker that has been used over here. For reasons unknown, some of these bacteria get through the lining of the throat and into the body proper, where they wreak the most devastating havoc. Wreak मतलब cause, यानी वो create करते हैं. Devastating havoc यानी destruction. They are completely resistant to antibiotics. About 1,000 cases a year occur in US and no one can say that it won't get worse. ठीक है. अब देखिए स्कैरी यानी ओपनिंग लाइंस जो है वो पैराग्राफ की एंडिंग लाइंस को कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं. सारी लाइंस एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. दिस इज अ टेक्स्ट गिवन बाय अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग रिटन बाय बिल बेरिसन. सो इसका मेन आइडिया क्या है? ठीक है, आपने इसका मेन आइडिया बताना है, इसमें सपोर्ट आइडियाज क्या है वो बताने हैं, और इसमें कौन से ट्रांजिशन मार्कर्स यूज हुए हैं वो बताने हैं. ठीक है, ये आपके गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है, आप अपने एंड पर इसे खोल भी सकते हैं इस चैप्टर को. आफ्टर 5 minutes आई विल टेक योर input for this paragraph. ठीक है, this is a class activity, make sure that you're participating.
Okay, who would like to share whatever they've gathered out of this text? So, what is the main idea of the paragraph? Okay, what is the paragraph about? किस बारे में बात हो रही है? मैम एक इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। Yes, the paragraph is about an out of control bacterial disorder called necrotizing fasciitis. That is our main idea. ठीक है, अब इसको सपोर्ट करने के लिए किस किस्म की डिटेलिंग दी गई है? सबसे पहले क्या बात हो रही है? सेकंड लाइन में क्या बात होती है? यानी फर्स्ट लाइन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ऑथर कि ये क्या करता है, यानी सिम्टम्स की बात हो रही है। देखिए पहली। रैपिडली कर जी जी। देता है हम्म। टिश्यूज को, हम्म। रैपिडली डिस्ट्रॉय टिश्यूज। हाँ, देखिए पहले ही सेंटेंस में क्लैरिटी के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वी आर इंट्रोड्यूस्ड विद द डिजीज which is an infection, bacterial infection, and it's called necrotizing fasciitis. Now then in the very next line, to support it, what it is being discussed, right? How does it work? Then, secondly, it's in the second and third line, they talk about a skin rash and fever. That is the basic symptoms of it, which may dramatically deteriorate later on. And again, उसके बाद उसकी रेमेडी यानी उसका इलाज भी बताते हैं, दैट इज अ रेडिकल एक्सिशनल सर्जरी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन, दिस इज एन इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ। देखिए पहले हमें पता चला कि एक बीमारी है, ठीक है, सबसे खतरनाक। वो क्या करती है वो बताया, कैसे होता है वो बताया, ठीक है। उसके बाद बताया कि इसकी रेमेडी क्या है, राइट। फिर उसके बाद एक स्टैटिस्टिकल डेटा ऐड किया कि 70% ऑफ द विक्टिम्स दे डाई। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इसी बात को, इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद उसकी बेसिस कहाँ से आती है। सो इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ में all the information always directly correspond to the main idea, and in this case our main idea is necrofasciitis. First we got to know what it is, right? It's a bacterial disorder, and it causes skin rashes and fever. It has certain treatments available, one of which is radical excisional surgery. Then 70% of people do not make out alive out of that surgery, and the basis of this infection comes from a step throat, from a bacteria called streptococcus. And then there is a transition marker used that very oftenly, that how does it make it there। देखिए शुरू में वो बताता है कि ये सब होता है, लेकिन ये होता कैसे है वो भी यहाँ पर वो आंसर करता है। तो ऑल द सेंटेंसेस दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इफेक्टिवली। तो ये सब इनके सपोर्टिंग डिटेल में क्या आ जाता है कि ये क्या कुछ करता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है। इसमें सिम्टम्स भी है, रेमेडी भी है, कॉजेज भी है। ऑल ऑफ देम दे आर सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ भी आप कर सकते हैं फॉर पर्सनल प्रैक्टिसेस, आपने कर लेना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हाउ टू रीड क्रिटिकली। देखिए हाउ टू रीड एक्टिवली तो हमने पढ़ लिया है। अब जो ये बात है, दिस इज अबाउट हाउ टू रीड critically. Now, when we read critically, we have certain questions in mind, and some of those questions could be: what is the purpose? What is the main point of view? How do I read it? What is the purpose of reading it? What questions do I have after I've read it? All these questions, they make your reading critical. So, reading critically means thinking about what you read while you read it. Many people believe what they read without questioning it. ठीक है, और usually जो हम पढ़ते हैं
स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में वो हम मीनिंगफुल रीडिंग करते हैं, वो क्रिटिकल रीडिंग करते हैं. सो इन ऑर्डर टू रीड क्रिटिकली, दीज आर द क्वेश्चन दैट शुड बी देयर इन योर माइंड. व्हाट इज द राइटर्स पर्पस? ठीक है. इज द राइटर बाइस्ड? व्हाट आर द कीवर्ड्स और मेजर क्लेम्स? ठीक है. अभी जो नेक्रोटाइजिंग फेसिशाइटिस का जो पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि उसमें कौन से क्लेम्स हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं, सर्जरी है, सिम्टम्स हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम उसमें क्रिटिकली एनालाइज करते हैं. देन वी चेक फॉर व्हाट इज फाइन प्रिंट. ठीक है. एनीबडी हु नोज व्हाट इज फाइन प्रिंट? बेसिकली फाइन प्रिंट का मतलब ये होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स आपकी तरफ आती हैं, जैसे एग्जाम्स, जैसे आपने जब एडमिशन लेना होता है यूनिवर्सिटी में, तो आप कोई रैंडम एडवर्टाइजमेंट पे बिलीव नहीं करते, ऑथेंटिक फाइन प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स पे बिलीव करते, क्योंकि फेक एडवर्टाइजमेंट्स भी तो होती हैं. तो फाइन प्रिंट कैसे पता चलता है? उसमें लोगो होगा. जैसे नमल में जब आपने एडमिशन लिया होगा, तो उसकी जो एडमिशन एड आई होगी वो पूरी एक्सटेंसिवली बनी होगी और आपने उसको इसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा, तो दैट मेक्स इट अ फाइन प्रिंट. ठीक है. विच मीन्स के it is authenticated, right? Then what do you think? What you have read? Why does anything seem odd, unrealistic, unreliable? Give specific example. और ये examples text से देते हैं. तो जब भी हम critically read करते हैं, तो ये चार पांच पांच questions आपके mind में आते ही आते हैं. Now look at this ad. Now let's go to first क्वेश्चन. व्हाट इज द राइटर्स पर्पस? अब इस एड में आप बताएं राइटर का पर्पस क्या है. दिस इज एन एड. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एड? जी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राइटर ऑफ दिस एड? मैम ये एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने ऐड दिया हुआ है.
Okay, what is it talking about? Sorry, क्या बात कर रहा है? मैम इसमें ये लिखा हुआ है कि डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा के बारे में भी लिखा हुआ है, डिग्री है जो आपको 2 वीक्स में मिलेगी। That's correct. So the purpose is to disseminate information among students and interested parties कि ये सब कुछ मिल रहा है. Is the writer biased? Biased होता है जानिबदार, यानी one sided है. Yes, it says you know बहुत सारी चीजें जो है इसमें शेडी लिखी हुई है. What are the keywords and major claims? Get a college degree in 2 weeks. No classes, no exams, no textbooks are required. Call at this, etc. Hurry because it is going to be closed within weeks. What is in the fine print? It's not known because it's an emailed advertisement. What do you think? What you have read? Why does so every piece of information in this is odd, unrealistic, and unreliable because it doesn't say that from which university we are going to get it, who's going to solidify it, who's going to vouch for it. It could be somebody starting MS, MBA, PhD, BA, MA at their homes and they are going to fake a degree. So it is not authenticated. It's odd and unrealistic because you cannot get a degree in 2 weeks. And odd क्यों है? Because it says no classes, exams, or textbooks. Then how are we going to be evaluated? Nothing is given. So this is how we can critically analyze and add and try and understand that what is wrong and what is correct in this perspective. Same goes for the rest of it. बहुत सारे इसमें pictures हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं. उसके अलावा review and reflect. The last point of the chapter is when you finished an article, a chapter, or a book, you will review and reflect on it. How would you reflect on it? By answering these questions. How would you summarize what you have read in your own words or in few sentences? What is your overall reaction to what you have read? What do you think your teacher wants you to learn out of this reading? So ये सारे questions जो हैं वो review and reflect में आपके पास आते हैं. So I hope you have understood how these things they work, right? और इसमें हमारे पास critical reading है, active reading है, paragraph writing है, main idea है and supporting detail है. तो ये सारा आज हमने इसमें discuss किया है. I'm giving you 5 minutes. If you have any questions, please go ahead and ask. Otherwise, we move forward.
Okay, any questions from basics of reading analytically, critically, skimming, scanning, and how a paragraph is, of course, structured? If you have any questions, please go ahead and ask. मैम जी जी। हम इसकी कैसे तैयारी करें, लाइक समझ नहीं आ रही किसी को भी कि हम लोग इसको किस तरह से स्टार्टअप लें, इसकी तैयारी कैसे करें, ना हमें इसका आइडिया हो रहा है कि पेपर कैसा आएगा, तो थोड़ी कंफ्यूजन है इसको लेके सबको। अच्छा, देखिए पेपर में आपके पास है बेटे 3 से 4 क्वेश्चंस, ठीक है। एक तो आपको पता है एमसीक्यूज बेस्ड होगा, तो जो भी डिस्कशन हमारी 2-3 क्लासेस में हुई है, फॉर फॉर योर पर्पसेस, फॉर योर आपके लिए बेनिफिट में ये है कि वो रिकॉर्डेड है। आप अगर उन्हें दोबारा सुन लेते हैं तो उन्हीं की बेसिस पे आपका जो कहते हैं कि एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। बाकी जैसे आज जो हमने डिस्कशन की है कि यू कैन हैव अ पैराग्राफ इन द पेपर, और कहा जाए कि आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस द सपोर्टिंग डिटेल और ऐड अ सपोर्टिंग डिटेल, ये इस तरह का जो एनालिसिस आज हमने किया ये हो सकता है। सेकेंडली ऐसे भी हो सकता है कि डिफाइन एंड डिस्कस लैंग्वेज स्किल्स, व्हाट इज SQR3 मेथड, द राइटिंग प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। तो वो जो पहली 3 या 2 क्लासेस में हमने जो डिटेल डिस्कशन की है लैंग्वेज स्किल्स पे, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा we also talked about how to reading strategies, the 10 strategies that I shared with you, 11 by the way। तो वो उनके नाम लिखे हो सकते हैं, आपको डेफिनेशन कहा जा सकता है, डिफाइन करे। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस भी हो सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस एग्जाम में आ सकते हैं, यानी वो डेफिनेशन लेवल पर भी आ सकते हैं कि डिफाइन एंड डिस्कस, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, और एप्लीकेशन बेस्ड पे भी आ सकते हैं कि एक पैराग्राफ दिया हो, कुछ सवाल दिए हो और आपने उसका आंसर देना हो, इस तरह से भी हो सकता है। तो हर किस्म की जो डिस्कशन हम क्लासेस में कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम कैन बी पार्ट ऑफ योर मिड टर्म। और तैयारी इसी तरह से कि आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर है, यस कुछ चीजें नहीं है वो आपको याद भी करनी है, जैसे कि प्रोसेसेस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, चारों लैंग्वेज स्किल्स के जो प्रोसेस हैं जो मैंने डिस्कस आपसे किए थे डिटेल में, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि चारों स्किल्स इंटीग्रेटेड है, क्यों इंटीग्रेटेड है, उसे कैसे एग्जाम्पलीफाई करना है, वो पता होना चाहिए। मेन आइडिया क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट, जरूरी नहीं है टेक्स्ट आपकी इस एग्जाम्पल से आए ना, टेक्स्ट तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसमें मेन आइडिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, सपोर्टिंग डिटेल कैसे आइडेंटिफाई करना है, और ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन मार्कर्स क्या है। तो ये जो मैं आपको बताई जा रही हूँ साथ साथ, ये सब कुछ आपके सिलेबस का पार्ट है और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे जो ट्रांजिशन मार्कर्स हैं वो मैं आपको सेपरेटली भी एक बार बता देती हूँ। मैंने कुछ मटेरियल पोस्ट कर दिया है, ठीक है, रिगार्डिंग राइटिंग मॉड्यूल, जिसमें बेसिक्स ऑफ राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, टॉपिक सेंटेंस, जो जो कॉन्सेप्ट्स अभी मैंने आपको एनालिसिस में बताए हैं वो सब एक्सटेंसिवली मैंने पोस्ट कर दिए हैं, ठीक है। इनकी रिकॉर्डिंग्स भी बेटे अवेलेबल है मेरी पिछली क्लासेस में से, ठीक है। वो मैं पेस्ट कर देती हूँ, पोस्ट कर देती हूँ, आप सुन सकते हैं। सिंस टाइम कम है, आपका मिड अप्रोच कर रहा है, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। आई कैन पोस्ट दोज लिंक्स इन योर उसमें गूगल क्लासरूम, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या कुछ पोस्ट किया ताकि आपको पता चले कि ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप सेपरेटली भी मुझसे डिस्कशन करना चाहें तो नेक्स्ट क्लास में हो सकती है। अब हमने जो बेटे डिस्कस किया है ना, दैट इज रीडिंग बेसिक्स, ऐसा ही है। इससे पहली क्लास में हमने स्ट्रैटेजीज की बात की थी, ये जो शीट थी, वर्कशीट थी, दिस वर्कशीट वाज डन, तो इसमें 10 स्ट्रैटेजीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर उससे पहले हमने रीडिंग प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस में क्या कुछ होता है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इट इज कंप्लीटेड, वो करेक्टरिस्टिक रीडिंग प्रोसेस, रीजंस फॉर रीडिंग, ये सब हमने डिस्कस किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक सेल्फ सफिशिएंट चैप्टर है, अगर आप इसे पढ़कर इन क्वेश्चंस का आंसर देते हो आपकी तैयारी खुद ब खुद हो जाती है। उसके बाद हमने SQR मेथड के बारे में बात की थी,
कि ये एक रीडिंग मेथोडोलॉजी है, एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू करते हो। तो यही सारी चीजें आपके पेपर में भी आ सकती हैं। अभी मैं आपको समराइजेशन एंड पैराफ्रेज बताने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके पैराग्राफ की तरफ ले जाऊँ। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग में आपको बता चुकी हूँ। इस स्पेसिफिक पावर पॉइंट की एक रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो मैं पोस्ट कर देती हूँ, आप उसे सुन लें। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको रीडिंग के साथ ही टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इसकी वो इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि किस तरह जनरेट करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ एंड ऐसे में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ कुछ ही देर में। हाँ, ये ट्रांजिशन मार्कर्स मैंने कुछ अपलोड किए, फ्रेजेस भी हैं, तो साथ लिखा हुआ है कि कब और कहाँ यूज होते हैं। तो ये बेसिक वंस आपको आने चाहिए। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि transitional markers or words or phrases, they are able to connect and relate ideas. Now compose a paragraph on a topic of smoking by utilizing transitional words in your write up। तो उसमें आपकी जो assessment होगी ना, उसमें आपने ये वर्ड्स यूज किए होने चाहिए। ठीक है, कनेक्टर कनेक्टर कहते हैं इन्हें, कनेक्शंस कहते हैं, तो ये वर्ड यूज करने। आई अंडरस्टैंड आपको ये सब नहीं आएंगे, लेकिन ये बेसिक है। ये जो हैंड आउट है इसमें सबसे बेसिक वन है, आपको शायद ये आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड्स तो आपको ऑलरेडी आते हैं और आप यूज भी करते हैं, जैसे एंड, ऑल्सो, बिसाइड्स, फर्दर, फर्दर मोर, इन एडिशन, ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वली इम्पोर्टेंट, अनदर। ठीक है, तो इट सिग्नल्स addition to idea. For example, if you're talking about that necrotizing fasciitis is a bacterial infection and it causes a lot of harm, full stop. In addition, it has certain symptoms. It causes skin rash and fever, full stop. Moreover, it has been practiced by etc. So you see, addition करने के लिए idea की addition जब आप करोगे, सपोर्टिंग डिटेल ऐड करोगे, तो ये वाले वर्ड्स आप इस्तेमाल। ये सिर्फ इतने नहीं है, मगर इनमें से भी कोई यूज कर ले तो ठीक है। तो सिग्नल टाइम, ये बहुत बेसिक वंस है। नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड, फाइनली, फर्स्टली, सेकेंडली। तो इस तरह से इनकी कैटेगराइजेशन हुई हुई है। एक एक्सरसाइज भी दी हुई है, एमसीक्यूज भी दिए हुए, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। तो ट्रांजिशन मार्कर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। राइटिंग प्रोसेस भी मैंने आपसे शेयर किया था, बड़ी दफा शेयर किया है, दोबारा बता देती हूँ। अब देखिए, राइटिंग प्रोसेस में ये पिक्चर से आपको बताती हूँ। एक पिक्चर यहाँ पे अटैच्ड है, दिस वन। If you remember, we talked about how first step is pre-writing, ठीक है, planning or outlining, then you have drafting, editing and revision, and then it goes on. Feedback is a cyclic process. तो ये सारा मैंने यहाँ पर आपकी राइटिंग प्रोसेस में इसको पोस्ट कर दिया है। ठीक है, मल्टीपल हैंडआउट से डरने की बात नहीं है, ये वाला मैंने आपसे बेसिकली शेयर किया था। ठीक है, रिविजन, एडिटिंग, तो आपने इसको यहाँ से पढ़ लेना है, इसके बारे में लिखा हुआ है, ये आपको पता है। तो प्रोसेसेस पता होने चाहिए, यानी राइटिंग का और रीडिंग का स्पेसिफिकली। ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग चले फाइनल टर्म में ले जाते हैं, तो आपको प्रोसेस पता होने चाहिए। उसके अलावा बेसिक्स जो मैंने आपको बता दिए, ये जो बेसिक्स हमने डिस्कस की थी लैंग्वेज स्किल्स की, इसकी वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप सुन सकते हैं। ये यूनिट भी अपलोडेड है, ये यूनिट से भी आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि इनका रोल क्या है एंड हाउ दे आर इंटीग्रेटेड। अब जो अभी मैंने, अच्छा, यहाँ तक बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कुछ अब समझ आ रही है कि ये कैसे अरेंज हुआ हुआ है? यस मैम। ठीक है, और आपने अपनी आउटलाइन तो देखी होगी ना। आउटलाइन आपकी बहुत जेनेरिक सी बनी हुई है। आई वुड शो इट टू यू वंस मोर सो दैट यू हैव एन आइडिया। कि अब मैंने आपको और क्लियर कर दिया है कि आप रीडिंग और राइटिंग के मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस करोगे। देखें, अभी तक हम रीडिंग में क्या बात कर रहे हैं? पर्पस, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, इंट्रोडक्शन यानी टॉपिक सेंटेंस। आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो इसी को कॉरिस्पॉन्ड करता है ना। अभी समराइजेशन और पैराफ्रेजिंग भी बता दूंगी, वो आपको पता ही है। और SQ3R मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ये तो बहुत ही जेनेरिक उन्होंने आउटकम्स लिखे हुए हैं, इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपके साथ कर भी रही हूँ। फिर राइटिंग में of course the process has to be discussed, summarization is going to be discussed। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको अभी इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ्स के बारे में बताया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ्स के बारे में बताया। जैसे अभी जो हम अमेरिकन और चाइनीज वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे, वो एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ है ना, उसमें वो लैंग्वेज भी इसी तरह की यूज करता है कि इन कंट्रास्ट।
ठीक है, तो यही सारी चीजें आपने फोकस करनी है जो मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दी है। रीडिंग और राइटिंग पे आपका खास फोकस होना चाहिए। नाउ डज इट मेक सेंस अ लिटिल बिट मोर? ऑफ कोर्स थोड़ी सी बेहतर होगी अंडरस्टैंडिंग आपकी। यस मैम। राइट। अब जो है जी समरी और पैराफ्रेज। अच्छा, एनीथिंग दैट यू रिमेम्बर अबाउट पैराफ्रेजिंग एंड समराइजेशन? ये हमने वैसे पढ़ा होता है बचपन से ही, लेकिन अगर कुछ याद हो तो। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन समरी एंड पैराफ्रेजिंग? यस मैम। There is definitely a difference, but in some cases बच्चे ये ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि paraphrasing and summarization, both of them are reading techniques and they are definitely different from each other. Any idea what the difference is? किसी को पता हो? यस मैम। मैम जी। पैराफ्रेजिंग होती है, जैसे लाइक पोइम का कोई स्टैंजा है तो उसको जो हम करते हैं हम्म पैराफ्रेजिंग होती है। और हम्म समराइजिंग वो होती है जो एक कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया होता है उसकी हमने समराइजिंग करनी होती है। Okay, fair enough and innocent enough that we are thinking that way, but unfortunately, it is not only confided to poetry or paragraph. Paraphrasing और summarization किसी भी चीज की हो सकती है। एक लड़ाई झगड़े की भी हो सकती है, एक एक्शन की भी हो सकती है, एक स्टोरी की भी हो सकती है, एक टेक्स्ट बुक की भी हो सकती है, एक वीडियो की भी हो सकती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? Paraphrasing is not only entitled or confided to poetry. Paraphrasing is a technique that can be used for a text as well. And summarization is not only concerned with a paragraph of some sort. Summarization could be of many levels. तो ये आपने कंसेप्ट माइंड में रखना है कि ये दोनों रीडिंग टेक्निक्स हैं, और ये नेसेसिटी नहीं है कि पैराफ्रेजिंग सिर्फ पोएम्स की होती है और समराइजेशन सिर्फ टेक्स्ट की होती है। ये दोनों चीज़ों को कर सकता है। Now, these are the common myths or misunderstandings that students probably have. Students often make the assumption that paraphrasing and summarization are the similar thing, but they are not. They have their own mechanisms and they are written in a different manner. So, the clarity that we need about the framing of the question is, what is the difference? Now, paraphrasing is the restatement of the author's original thought and meaning. यानी author ने जो कहा है, वो poet भी हो सकता है, वो writer भी हो सकता है, वो speaker भी हो सकता है। ठीक है, ऑथर सिर्फ राइटर नहीं होता, यानी जो लिखता है सिर्फ वो ऑथर नहीं होता। अगर मैं एक पोएम यहाँ पढ़ती हूँ, मैं यहाँ एक शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाती हूँ, तो वो स्टोरी की ऑथर भी तो मैं ही हूँ ना, बोल भी तो सकती हूँ। तो पैराफ्रेजिंग ऐसे भी होती है, विच सिंपली मीन्स रीस्टेटमेंट, where you do not add any personal point of views, commentaries, or analyses. Summarization, on the other hand, is the condensing of a passage or a thought into a smaller package. Summarization जो है वो उसको कंडेंस करता है, यानी कॉम्पैक्ट करता है, कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है। पैराफ्रेजिंग उसे रीस्टेट करता है। ठीक है, पैराफ्रेजिंग is to restate another work in your own words but maintain the author's original meaning. अब इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है पैराफ्रेजिंग और समरी में, कि दोनों में ही आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड नहीं करना है। इट मस्ट स्टे द सेम। ठीक है, समराइजेशन एक क्रिटिकल समरी होती है, उसकी मैं बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त ऑब्जेक्टिव समरी की बात कर रही हूँ कि जो टेक्स्ट में लिखा है उसको एज इट इज उसी मीनिंग को इंटैक्ट रखते हुए उसको कम लफ्जों में बताना है। यानी 10 लाइनों में कोई बात बताई गई है, आपने 5 से 4 लाइनों में वो बतानी है, लेकिन ना तो मीनिंग चेंज करना है, ना तो टोन चेंज करनी है, और ना ही एग्जैक्ट वर्ड्स उठाने हैं। दैट्स अ वेरी कॉमन myth and misconception and wrong practice among students and even in some teachers, कि हम क्या करते हैं कि हम एज इट इज जो टेक्स्ट है ओरिजिनल टेक्स्ट से ले लेते और उसको अपनी समरी या पैराफ्रेज में रख लेते हैं। नो, दैट विल कॉज प्लेजरिज्म। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेजरिज्म? इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, प्लेजरिज्म। मैम जैसे बिल्कुल ही एज इट कॉपी करना किसी चीज को। यस, जिसे आप नए जमाने में शायद कॉपी पेस्ट करते हैं।
कॉपी पेस्ट कहते हैं, जैसे आजकल एआई का जमाना है तो वो भी प्लेजरिज्म में आ जाता है। प्लेजरिज्म सिंपली मींस इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, कि अगर मैंने कुछ कहा है, मैंने कुछ लिखा है, आप अपनी असाइनमेंट में वो कॉपी कर लेते हो और उसका यही मतलब होता है, उसका क्लेम यही होता है, उसका मीनिंग यही बनता है कि वो आपने लिखा है। तो आपने मेरे थॉट्स को बिना रेफरेंस दिए चोरी कर लिया। सो चोर को कहते हैं एक प्लेजरिज्म जो है चोरी है, इंटेलेक्चुअल यानी सोच की चोरी को प्लेजरिज्म कहते हैं। तो अगर पैराफ्रेज या समराइज करते हुए मैं एज इट इज टेक्स्ट लिख देती हूँ अपने आंसर में, दैट इज प्लेजरिज्म। और स्कूल कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली शायद इस तरह सिखाया भी जा रहा होता है कि आपने जो वर्ड सवाल में है और जो ऊपर टेक्स्ट में है वही नीचे लिख देना है। नो, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। कॉम्प्रिहेंशन का मकसद यही है कि उस पैराग्राफ को समझने के बाद अपने वर्ड्स में लिखना है। और पैराफ्रेजिंग और समराइजेशन में भी ऐसा ही है, दैट यू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड राइट देन इन योर ओन वर्ड्स, right? In order to do a good paraphrase, this is the checklist that you should keep in mind. Read the original paragraph multiple times and try to understand the concept and the author's meaning. Identify the main ideas and then write in your own words. ठीक है? उसके बाद फोर जो मस्ट हैं पैराग्राफ के, दैट पैराफ्रेज के, कि ये आपके अपने वर्ड्स में होना चाहिए। और उसकी जो लेंथ है या तो वो सेम होनी चाहिए, अगर 10 लफ्ज हैं तो 10 लफ्ज ही होने चाहिए या 15 हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। पैराफ्रेजिंग में जो लेंथ है वो सिमिलर रहती है या फिर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पैराफ्रेजिंग का मकसद ही एक्सप्लेन, इन्फॉर्म और इलैबोरेट करना होता है। ठीक है? used to explain be used to explain a difficult complicated concept as well. Paraphrasing is used to explain a difficult concept, convey the original meaning. ठीक है? अभी मैं आपसे एक प्रैक्टिस भी करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी जो हमने वो वीगन वाला पैराग्राफ पढ़ा है ना, उससे मैं आपको बताऊंगी कि पैराफ्रेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है? सो 4 मस्ट्स एंड 4 फिंगर टेस्ट्स जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब देखिए पैराफ्रेज की गुड एग्जाम्पल ये है। अब ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, राइट? लेकिन पैराफ्रेज करके वो ज्यादा हो गया। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा, सेम वर्ड्स नहीं है। और ये एक बैड एग्जाम्पल है। देखिए सेम लेंथ है, लेंथ इज फाइन, लेकिन वर्ड्स जो है एग्जैक्टली सेम लिए गए हैं जो यहाँ पर है, तो एग्जैक्ट वर्डिंग आप नहीं ले सकते। एक रूल अभी जो आपको चेकलिस्ट में मैंने बताया कि compare your text to the original and use 5 finger text. If you count more than 5 exact words, you need to change it. For example, ये हमारा original text है, plagiarism does not only happen in student essays. अब अगर इसी तरह की लाइन exactly इसमें आती है तो वो bad example में आ जाती है। ठीक है? जैसे ये लाइन देखे, plagiarism doesn't only happen in student essays. स्टूडेंट एसेज आर नॉट द ओनली प्लेस फॉर प्लेजरिज्म। अब ये एक बैड एग्जाम्पल है। आप देख रही हैं कि उसको रीफ्रेस तो कर दिया है, रीस्टेट तो कर दिया है, लेकिन सेम जगह है, सेम तरीके से किया गया। सो दैट्स अ बैड एग्जाम्पल। समराइजेशन ऑन द अदर हैंड, वेयर वी लुक फॉर द मेन पॉइंट्स एंड एलिमिनेट द मेन डिटेल्स, but summary is considerably shorter than the original text. ठीक है? और इसकी चेकलिस्ट में क्या आता है? यू आर गोइंग टू रीड इट, यू आर गोइंग टू identify the main points, and then you're going to write in your own words and compare your text to the original vision test. देखें पैराफ्रेज में हमारे पास 5 फिंगर टेस्ट था और विजन टेस्ट में ये है कि ओरिजिनल वर्क मस्ट बी ट्वाइस द साइज एज योर वर्क, इफ नॉट यू नीड टू श्रिंक और कट द नंबर्स डाउन। अब अगर 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो आपकी समरी 50 वर्ड्स या लेस की होनी चाहिए। A summary must be in your own words, but that does not mean that you're going to add any opinion or comment or analysis. ठीक है? अच्छा, समरी को बच्चे जो है वो प्रेसी से भी कंफ्यूज कर लेते हैं। प्रेसी बेटे 1/3 होती है, समरी हाफ होती है, ये आपने याद रखना है। अगर कोई मिसकंसेप्शन है, यस, अगर स्पेसिफिकली सवाल में कहा जाए समराइज द पैराग्राफ इन 2 लाइन्स तो वो अलग बात है। अदरवाइज अगर ओपन है तो ऑब्जेक्टिव समरी इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। इट मे कंटेन वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, बट देन दे मस्ट बी रिटन इन quotation marks, and you must convey the original meaning, but you must not evaluate, assess, comment or criticize the work. ठीक है? सो 4 मस्ट्स एंड विजन टेस्ट को अगर देखें, अब ये हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है और इसकी समरी देखें, इट्स अ गुड एग्जाम्पल कि कम से कम 6 लाइनें हैं और ये हमने 3 लाइनों में इसको कंप्लीट कर लिया। एंड दिस इज द बैड वन। देखें सिमिलर लेंथ है तकरीबन
और सेम वर्ड्स यूज हो रहे हैं. सो आई हैव टेकन दिस आइडिया फ्रॉम दिस प्रूव्ड ऑनलाइन राइटिंग लैब. इसमें बहुत अच्छी और भी टेक्निक्स हो सकती हैं अबाउट पैराफ्रेजिंग एंड समराइजेशन, तो आप देख सकते हैं. ठीक है. अब अच्छा, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गलती कहाँ होती है. अभी जो हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे, अब आपने मुझे बताना है कि आप इसका पैराफ्रेज कैसे स्टार्ट करेंगे. दिस वन, दिस इज द पैराग्राफ. हाउ वुड यू पैराफ्रेज को स्टार्ट कैसे करेंगे. दिस पैराग्राफ, मैनी पीपल लुक एट मी blankly when I tell them I am a vegan. हम्म. देखिए, पैराफ्रेज का पहला असूल ये है कि लेंथ तो सेम रहनी चाहिए, तो लेंथ तो सेम रहेगी. ठीक है. फिर और क्या करेंगे इसमें. अच्छा, आई एम गोइंग टू टर्न दिस इनटू ए होम असाइनमेंट फाइनली. ठीक है. उसमें आपने ये इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपसे शेयर की हैं तो वो आपने करनी है. 3 से 4 पैराग्राफ्स होंगे बेटे, उसकी समरी और आपने पैराफ्रेज करके अपलोड करनी है. ये गूगल क्लासरूम में आपको अभी शो हो जाएगी. तो जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उसको दोबारा सुन ले, दोबारा पढ़ ले, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स आपने इसे पैराफ्रेज और समराइज करके अपलोड करना है. प्लीज एआई मत यूज कीजिएगा, क्योंकि एआई अपने रूल्स एलोकेट कर देगा, जेनेरिक रूल्स एलोकेट कर देगा. आपने रूल्स वही फॉलो करने हैं जो मैंने आपसे शेयर किए. ठीक है. दिस विल बी एन असाइनमेंट ऑफ 5 मार्क्स. ये मैं अभी पोस्ट कर देती हूँ ताकि आप इस पे काम शुरू कर सकें. 4 4 पैराग्राफ्स ही होंगे, उसी को पैराफ्रेज भी करना है और उसी को समराइज भी करना है. ठीक है. ये मैं अभी पेस्ट कर देती हूँ. अभी कोई क्वेश्चन है फ्रॉम समराइजेशन एंड पैराफ्रेजिंग, प्लीज गो अहेड एंड आस्क. कोई सवाल हो तो पूछ लें. Meanwhile, I post your assignment. If you have any questions, please jot them down और फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं.
Okay, I've posted your assignment. I'll just quickly discuss it with you. सेम है जो अभी हमने प्रैक्टिस भी किया है। ये आपको हेल्प भी करेगा समझने में। ओके, हियर यू गो। अच्छा, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने अपलोड इधर ही करनी है बेटा। यू विल बी एबल टू सी इट एट योर एंड। सॉरी। दो पैराग्राफ हैं, ठीक है, फिर मैंने ज्यादा नहीं रखे। दोनों को, यानी इस पैराग्राफ नंबर 1 को आपने समराइज भी करना है ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, एंड पैराफ्रेज भी करना है। सेम गोज फॉर दिस, ठीक है। डेडलाइन इसकी मैंने 16th ऑफ मार्च रख दी है, 9 PM या 11 PM, यानी 16 के बाद यू वोंट बी एबल टू अपलोड इट। आपने इसको आप टाइप्ड भी कर सकते हैं और हैंड रिटन भी कर सकते हैं, योर चॉइस, बट मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज द रूल्स दैट हैव शेयर्ड इन द क्लासरूम। समझ आ गई असाइनमेंट में क्या करना है? 2 पैराग्राफ्स आर देयर एंड फॉर ईच यू आर गोइंग टू, दोनों को समराइज भी करना है और पैराफ्रेज भी करना है रूल्स को फॉलो करते हुए। एआई से अंधाधुंध करेंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रूल्स फॉलो करता है कि नहीं करता है, वो एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, प्रॉब्लम है। तो आपकी असाइनमेंट 1 जो है वो 16th मार्च को मैंने इसको सेट कर दिया है। अच्छा बेटे, कोई सवाल हो तो पूछे। एनी क्वेश्चंस? मैम, ये जो पेपर से रिलेटेड आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि स्टूडेंट का पेपर कैसा हो तो आपको अच्छा लगता है? दैट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन बट आई विल आंसर इट एनीवे। अगर वो करेक्ट लिखा होगा, देखिए मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, वो तो इररेलेवेंट है ना बेटे। सवाल के मुताबिक जवाब है तो पेपर अच्छा है, और अगर सवाल के मुताबिक नहीं है तो पेपर अच्छा नहीं है। दैट्स सिंपल, है ना। ये लॉजिकल बात बनती है वो। बाकी तो मेरी पसंद नापसंद क्या ही मैटर करती है। करेक्ट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बस ये अगर आप फॉलो करोगे तो फाइन। तो मैम, मेरे कहने का ये मतलब था कि कुछ टीचर्स होती हैं वो कहती हैं थोड़ा अप टू द पॉइंट एक्सप्लेन करो, तो वो कुछ कहती हैं कि थोड़ा ज़्यादा हो एक्सप्लेनेशन। हाँ मैंने ठीक है। तो इस तरह से पूछे ना कि ज्यादा ज्यादा लिखना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए आपके जो क्वेश्चन हैं, अब अगर आपके पास ऐसे आ जाता है, ऐसे तो हमने डिस्कस नहीं, हाँ पैराग्राफ राइटिंग आती है, तो डिपेंडिंग ऑन द स्कोर्स, अगर वो 5 नंबर का है, 7 नंबर का है, 4 नंबर का है, और अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक डिटेलिंग मांगी गई है तो उसके मुताबिक आप अटेम्प्ट करोगे। दैट इज ऑल्सो योर प्रोरोगेटिव कि आप एक पैराग्राफ को किस तरह से लिखते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों की वेडनेसडेज को क्लासेस होती हैं? मैम, वेडनेसडे हमारा ऑफ होता है। ठीक है, यानी पूरा ही ऑफ होता है ना। यू डू अंडरस्टैंड कि एक लिमिटेशन है दैट वी ज्वाइन लेट, तो मैं एक और क्लास आपके साथ लेना चाहती हूँ, जस्ट इन केस। आई विल आस्क योर कोऑर्डिनेटर। अच्छा ये बताएं, डू यू थिंक कि अगली फ्राइडे होगी क्लास? मैम, आई थिंक सो बहुत मुश्किल है होगी। हाँ, तो अगर वो हम वेंसडे को ही ले लें ताकि आपका कोई हर्ज ना हो और मैं आपके साथ पैराग्राफ भी और प्रैक्टिस कर सकूं। ऑल्दो मैं ये लिंक्स आपको भेज रही हूँ, यही इन्हीं चीज़ों पर रिकॉर्डेड कुछ पुरानी क्लासेस हैं, वो सुन सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस इट 101। सिर्फ आप ही बात करती हैं, बाकी तो बेटे कोई बोलता भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। बस आप लगाकर सो जाते हो, तो आई एम क्वाइट वरिड, ठीक है। तो माहा तो मुझे समझ आ रही है, उसको कुछ ना कुछ समझ आ रही है, बट द रेस्ट ऑफ यू, यू डोंट स्पीक, यू डोंट आस्क, तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि क्या चल रहा है। आपको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है कि नहीं? पता चले सारे फेल हो गए हैं, क्योंकि क्वेश्चनिंग जब हम करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, आप लीडरशिप और मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, कि जितनी क्वेश्चनिंग होती है उतनी क्लैरिटी अचीव होती है। अब देखिए आपने सवाल पूछा और आपको क्लैरिटी मिल गई कि नंबर डिवीजन पे और सवाल पे डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ पर कितना और किस तरह लिखना है, राइट। तो कुछ अगर सवाल हो तो बेटे पूछ लो, अभी भी 4-5 मिनट हैं, और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी फिर कि अगर वो अलाउ करते हैं और अगर कोई स्पेस अवेलेबल है तो हम कोई मेकअप क्लास ले लेते हैं वेंसडे को। अनफॉर्चुनेटली मेरी भी वेंसडेज को बैक टू बैक क्लासेस हैं, बट आई कैन अरेंज समथिंग ताकि मैं आपके साथ थोड़ा सा पैराग्राफ राइटिंग को भी और प्रैक्टिस कर सकूं, ठीक है। अब अगर बेटे कोई सवाल हो तो बताओ।
आज ना अभी आपके पास आई थिंक आप लोग फ्री हैं इसके बाद, या अगर नहीं भी हैं तो आफ्टर जुम्मा जब आपके पास 10-15 मिनट हो, आई वांट यू टू गो इन द गूगल क्लासरूम एंड स्क्रोल। आपने बस देखना है कि क्या कुछ पोस्ट हुआ हुआ है, क्यों पोस्ट हुआ हुआ है, कैसे पोस्ट हुआ हुआ है। फिर आपने सोचना है कि आपने क्या सवाल पूछने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी मटेरियल जो मैंने पोस्ट किया है, डिस्कस किया है, तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछेंगे तो क्लैरिटी आएगी, वरना तो फिर थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। हम्म Okay, any questions? If there are none, then I would like to take your leave because I have another class now. ठीक है बेटे, okay, Allah Hafiz, take care. I'll see you either on Wednesday or Friday or maybe on the day of exam. We'll see. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।